Hello students, I am your teacher Tanha ma'am, and today we are going to study first chapter of class 12 from the book Flamingo. The chapter is titled The Last Lesson and it is written by Alphonse Daudet. In this chapter, Alphonse Daudet has described that how painful it is for the people of that country when it is ruled by some foreign country. It affects their social life, it affects their language, it affects their economic condition, and it is really very painful to be a slave or to be under the control of some foreign country. Now, we will read the introduction of the chapter so that we can better understand that what is the story about, what is the background of the story. As we could see that the author is Alphonse Daudet. He was born in 1840 and passed away in 1897. He was a French novelist, and that's why here the story is of France. He was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War. That is, it had happened between 1870 to from 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, Prussia was led by Bismarck, the ruler of Prussia. Now you may have a question that right now we don't have any country named Prussia, but earlier the part of Germany, Poland and Austria were called one nation and it was named Prussia. Prussia then consists of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. At that time, people of Prussia used to speak German language. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Alsace and Lorraine are the northeast part of Prussia, and the rule of these two districts had gone into the hands of Prussia, and what change it has brought into the life of French people. Now, to better understand the map on the map, we will shift to the 6th page of the text where a map is given for your understanding. Let's see the map, class. Yeah, this is the map of France. You could see that, and here on the eastern side, that is here on the eastern side, you could find that name of Lorraine and Alsace. Yeah, here. Okay, fine. So this was the part which were then ruled by Prussia, and orders were passed controlling the lives of people, about their language, about their living. Fine. Let's see the chapter. I start for school. Now this story is narrated by a school going boy named Frank, and he said that as usual he was going to school one day, and this boy didn't like to go to school, didn't like to study well. He loved to play in the countryside. This is a story of a small because this Alsace and Lorraine, Alsace was not a big place, it was a small town. So he loved to go for the hunting, he loved to go catching the birds and going and playing in the farm. So people at that time, people of France were not so serious, specifically countryside was not so serious about learning and getting education. So he said that I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. He said that I had started going to the school, but at that time I was very much afraid of getting scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. And why he was so afraid? Because M. Hamel had announced the day before that he was going to ask questions on French grammar, that is topic participle. So that's why he was very afraid, because he didn't like to go to school, he didn't like to study, he wanted to enjoy and play. And
did not know the first letter, I did not know the first word about them. He said, I don't know anything about the French grammar, the participles. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. He thought that instead of going to school, let me go out into the farms or bunk the school and play outdoors. It was so warm and so bright. He said the atmosphere was so good, it was so bright, and other things, nature was attracting me, was calling me. The birds were chirping at the edge of the wood. I could hear the sound of the birds chirping, making sound at the in the jungle or the edge of the woods. That is at the edge of or at the brink of woods. In the open field back on the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. As I told you, Alsace and Lorraine were then controlled by Prussian soldiers. So he could hear that at the back of a sawmill. So at the open field back of the sawmill. Sawmill means a factory where woods were stem of the trees were brought. It was then processed and converted into wood or into the paper. That is called processed house for wood. The Prussian soldiers were drilling. Drilling means that they're doing the usual training. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and I hurried off to school. He said that the sound of the birds, open fields, all these things were more attracting me than the rule of participle. But then I thought that no, I cannot go out, I cannot bunk the school, and I stopped that. I had the strength to resist. Resist means to fight with, to control my temptation not to go to school, and then hurriedly I went to school. ओके क्लास, फिर से एक बार आपको समझा दूँ कि ये जो स्टोरी है ये एक स्कूल गोइंग बॉय की स्टोरी है जो ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ पे सारे बच्चे, नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ की स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी एज के, एक ही एज के स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसे स्मॉल टाउन होता है जहाँ पे एजुकेशन रेशियो बहुत कम होता है वहाँ पे बड़े बच्चे और छोटे बच्चे सभी एक क्लास में ही बैठ के पढ़ते हैं और मोस्ट ऑफ से अपने एज के अकॉर्डिंग लेसन्स पढ़ते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उनके लेसन्स सेम होते हैं। फर्दर ये ऐसी ही एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं और ये जो लड़का है फ्रैंक, वो उस दिन स्कूल जाने में बहुत लेट हो गया था और बहुत डर भी रहा था स्कूल जाने में, क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हैमल का मतलब होता है मिस्टर हैमल, और एक्चुअली फ्रेंच में बोला जाए तो उसको मिस्टर नहीं बोलते, वो बोलते हैं मॉन्जर। तो मॉन्जर हैमल है वो, उन्होंने कहा था कि भाई कल मैं तुम्हें पूछूंगा क्वेश्चंस ग्रामर टॉपिक पार्टिसिपल्स पे, और उसको एक्चुअली कुछ भी पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं आता था बिकॉज ही वॉज, क्योंकि उसको पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो जब निकला वहाँ से तो उसको लगा कि जो बर्ड्स चर्प कर रही है, आवाज़ें कर रही है वुड्स पे, ट्रीज़ पे बैठकर, ओपन फील्ड है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है पढ़ाई करने से। और फिर लेकिन फिर वो सोचता नहीं मुझे स्कूल जाना है, तो अपना जो बाहर घूमने का इरादा था उसको उसने कंट्रोल कर लिया और सोचा कि नहीं मैं फटाफट स्कूल पहुँचता हूँ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और जब वो फटाफट जा रहा था तो वहाँ पे जो टाउन का हॉल था, टाउन हॉल था, वहाँ पे बाहर बुलेटिन बोर्ड लगा होता था, मतलब नोटिस बोर्ड, काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड, वहाँ पे कुछ लगा हुआ था और लोग इकट्ठे हुए थे वो पढ़ने के लिए। और उसने सोचा कि जब से ये प्रुशिया ने हम पे रूल करना शुरू किया, हम प्रुशिया के कंट्रोल में आए, तब से ये बुलेटिन बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड हमारे लिए हमेशा बैड न्यूज़ लेके आता है। जैसे कि हमने जो बैटल्स लॉस्ट की है उसके बारे में। द ड्राफ्ट मीन्स न्यू rules and regulations, new orders
फिर और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर मतलब वहाँ का जो मिलिट्री ऑफिसर है प्रूशिया का, वो जो ऑर्डर्स देता है वो सारे यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाए जाते हैं। तो उसने सोचा कि इस बार वो रुका नहीं, स्कूल क्योंकि उसको स्कूल में देरी हो रही थी, वो रुका नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो चीज़ आई कि अब क्या नए ऑर्डर्स आए होंगे, अब क्या नया चेंज इन लोगों ने, प्रूशियन लोगों ने किया होगा। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get your school in plenty of time." फिर वो बोलता है मैं वहाँ से जब पास हो रहा था फटाफट, वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ था, वॉचर, जिनको ये लड़का फ्रैंक जानता था, वो वहाँ पे खड़ा था अपने अप्रेंटाइज के साथ। अप्रेंटाइज मतलब हेल्पर यहाँ बोलते हैं, ट्रेनी, जो उसके पास से ट्रेनिंग ले रहा था, वो दोनों बुलेटिन पढ़ रहे थे। तो जैसे ही उसने देखा वॉचर ने कि ये फ्रैंक है वो भाग के जा रहा है, तो उसको बोला कि भाग के मत जा बब, बब मीन्स बॉय, भाग के मत जा बॉय, क्योंकि तुम अपने स्कूल में आराम से जा सको, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। ऑथर ने जब ये सुना, ही फेल्ट बिट सरप्राइज, उसे ऐसा लगा जैसे ये ब्लैक स्मिथ है उसकी मजाक उड़ा रहा है। I thought he was making fun of me and Rich Hamel's little garden all out of breath। और जो स्कूल होती थी वहाँ पे वो कैसे होती थी कि जो टीचर का रेसिडेंट होता है, वहाँ पे रेसिडेंट होता है तो नेचुरली एक घर होगा, घर के बाहर मकान होगा, घर और मकान के बाहर वहाँ पे थोड़ा सा गार्डनिंग करते होंगे, और ऊपर के फ्लोर, नीचे स्कूल चलती है और ऊपर के फ्लोर पे टीचर्स रहते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं कि टीचर वो रहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं फटाफट में पहुँचा और बाहर जो गार्डन था एम हैमेल का, मिस्टर हैमेल का, वहाँ तक मैं पहुँचा ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब मेरी सांसें बहुत फास्ट चल रही थी। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street। वो कहते हैं यूजुअली जब स्कूल शुरू होने का टाइम होता है तो वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें होती हैं बच्चों की, क्योंकि बहुत बच्चे इकट्ठे होते हैं तो नेचुरली है कि बहुत ज़्यादा आवाज़, शोर शराबा होता है। तो वो कहता है कि वहाँ पे बहुत ही बस्टल होती है जो बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देती हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वहाँ पे जो बेंचेस होती है, कैसी बेंचेस होती है, वो पुरानी स्टाइल की जो खुलती है, आप अंदर बैठ जाओ, फिर उसको ऊपर का जो डेस्क होता है वो बंद करना होता है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब जब स्कूल चल रही होती है तो तरह तरह की आवाज़ स्कूल से आती है, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क होता है। लेसन्स जब बच्चे की यूनिसन मतलब एक साथ लेसन्स रिपीट करते हैं, ज़ोर से बोलते हैं। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, उस वक्त किस तरह से पढ़ाया जाता था बच्चों को, जो लेसन वो सिखाते हैं वो ज़ोर से बोलना होता है और वो अपने ईयर्स को कवर करके बोलना होता है। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उसकी भी आवाज़ आती है कि टीचर जो होते हैं वो अपनी रूलर को बेंच पे, अपने टेबल पे स्ट्राइक करते हैं। रैपिंग मतलब स्ट्राइकिंग, उसकी भी आवाज़ें आती हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन वो फ्रैंक सरप्राइज हो गया कि ना ही आज रूलर की आवाज़ आ रही, ना ही बच्चों की आ रही है, ना ही टीचर के पढ़ाने की आ रही है। बात क्या है, क्यों सब इतना एकदम खामोश शांत है। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। फ्रैंक ने तो सोचा था कि मैं जब स्कूल पहुंचूंगा तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा कॉमोशन होगा। कॉमोशन मतलब नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन होगा, सब बच्चे इधर से उधर जा रहे होंगे, आवाज़ कर रहे होंगे, तो मैं टीचर की नज़र में आए बगैर अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाऊँगा, ऐसा उसने सोचा था। I had counted on means I have dependent on कि कॉमोशन मेरी हेल्प करेगा। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। लेकिन मेरी सरप्राइज, क्योंकि उसको बहुत सरप्राइज़ हुआ, तो उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि स्कूल ही ना हो उस दिन।
उसको बहुत ही अजीब लगा। थ्रू द विंडो आई सॉ क्लासमेट, इसलिए उसने विंडो से देखा कि भाई इतना शांत क्यों है, शायद मैं ही गलत दिन पे नहीं आया गया हूँ ना। लेकिन उसने देखा कि नहीं, उसके क्लासमेट्स जो थे वो अपनी बेंच पे बैठे थे, अपनी जगह पे बैठे थे। And M. Hamel, Mr. Hamel, walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। और उन्होंने देखा कि बच्चे ही नहीं, मैम हैमल टीचर भी आ चुके हैं, और टीचर अपनी जो रूलर है अपने आर्म्स के अंदर दबा के आयरन रूलर को वो चल रहे हैं इधर से उधर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब जब सब कुछ शांत था तो मुझे खुद ही डोर ओपन करके अंदर जाना पड़ा सबके सामने। मतलब मैं लेट आया हूँ ये मैं किसी से छुपा नहीं सकता। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। आप सोच सकते हो कि जब सब कुछ एकदम शांत था, टीचर खड़े थे रूलर लेके, और मैं वहाँ पे गया तो मेरी क्या हालत होगी। हाउ आई ब्लश मीन्स फेल्ट एम्बेरेस्ड, फेल्ट शेमफुल, एंड हाउ फ्राइटन, और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन फ्रैंक को बहुत सरप्राइज़ हुई कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना ही टीचर उसको डांटा, ना ही टीचर ने उसको मारा। एम हैमर सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। फटाफट जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, तुम नहीं आते तो हम तुम्हारे बगैर भी लेसन हमने स्टार्ट कर दिया होता। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। जो फ्रैंक है वो जो नरेटर है वो बहुत सरप्राइज हो गए, चुपचाप जाके अपनी बेंच पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। ऑफकोर्स पहले तो वो बहुत एकदम से सहम गया था जब वो क्लास में एंटर हुआ, लेकिन धीरे धीरे अपना जो फ्राइट था, अपना जो डर था उसको कंट्रोल किया, उसको ओवरकम किया, और फिर वो जाके अपनी डेस्क पे बैठ गया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? जब वो अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया, थोड़ा अपने डर को कम किया, तब उसका ध्यान गया वो देखने के लिए कि उसके जो टीचर थे उस दिन उन्होंने स्पेशल क्लोथ पहने थे। उन्होंने उस दिन ग्रीन कोट पहना था, अपना जो स्पेशल ग्रीन कोट है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो पहना था। हिज फ्रिल्ड का मतलब होता है जिसमें लेस हो, कुछ डेकोरेशन हो, तो हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट था अपना वो भी पहना था। मतलब नॉर्मली ये सारे कपड़े स्पेशल ओकेशंस पे ही पहनते थे टीचर। सो उन्होंने अपना ग्रीन कोट पहना था, उसके अंदर था उनका फ्रिल्ड स्पेशल जो एम्ब्रॉयड्रीड वाले या फिर बोलते हैं कि डिज़ाइनर्स शर्ट पहना था। एंड द लिटिल ब्लैक कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, इवन जो कैप भी पहनी थी वो भी एम्ब्रॉयडरी वाली थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। ये स्पेशल क्लोथ था टीचर का, जो वो इंस्पेक्शंस डे, जब ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के लिए आते थे तब, या तो फिर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, उसी दिन वो ये कपड़े पहनते थे। तो फ्रेंड्स को बहुत ही अजीब लगा कि आज क्यों टीचर ने ये स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं। बिसाइड द होल स्कूल सिम सो स्ट्रेंज एंड सोलम। उसके अलावा उसने देखा कि एकदम शांत, एकदम से सिंसियर, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर था, और अजीब सी पीसफुलनेस थी पूरे क्लास में। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty। लेकिन फिर उसने मुड़ के देखा कि एग्जैक्टली बात क्या है, इधर उधर देखा समझने के लिए कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है। तो उसने देखा कि बैक बेंचेस जहाँ पे जो नॉर्मली एम्प्टी रहती थी वहाँ पे विलेज के कुछ लोग बैठे थे। The village people sitting quietly like ourselves। ओल्ड हाउज़र बैठे थे वहाँ पे, एक जेंटलमैन थे जो ओल्ड थे हाउज़र, वो बैठे थे। विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, बहुत ही जाने माने पर्सन थे, वो बैठे थे अपनी 3 कॉर्नर हैट पहन के। फिर फॉर्मर मेयर, वो जिस डिस्ट्रिक्ट के मेयर थे वो, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। बहुत सारे लोग जो जाने पहचाने लोग थे उनके टाउन के, वो सारे बैठे थे। एवरीबडी लुक सैड एंड हाउज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। उनका बहुत अजीब लगा कि सब जो बैठे थे वो बैठे थे, चुपचाप बैठे थे और बहुत सैड दिख रहे थे।
उसमें जो ओल्ड हाउसर थे वो अपनी ओल्ड प्रिमर यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रिमर मतलब अपनी पुरानी ग्रामर की किताब, फ्रेंच ग्रामर की किताब लेके आए थे। थम्ड एट द एजेस मतलब कभी कभी होता है ना कि जो बुक हमने बहुत बार पढ़ी होती हैं तो उसके जो सिरे होते हैं, उसकी जो एजेस होती है वो थोड़ी सी टॉन हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, थोड़ी सी वहाँ से फट जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड थम एट द एजेस। And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और वो बुक लेके आए थे, बुक ओपन की हुई थी और उसमें से वो स्पेक्टिकल्स पे रखे थे जैसे कि वो बुक वो वहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो। While I was wondering about it all, मैं सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि ये सब क्या है। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल स्टेज पे जाके अपनी चेयर पे बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और वही ग्रेव मतलब सीरियस सैड वॉइस में और जेंटल टोन में। नॉर्मली एम हैमल कभी भी जेंटल टोन में बच्चों से बात नहीं करते थे बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। सो फर्स्ट टाइम उसने देखा कि एकदम सीरियस होके, एकदम सैड होके जेंटल टोन में वो बोल रहे थे। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। The order has come from Berlin, that is capital of Germany, capital of Prussia, to teach only German in the school of Elzig and Lorraine. The new master, new teacher comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. और फिर जाके उन्होंने पूरी बात बताई कि आज ऐसा ऑर्डर्स आया है बर्लिन से कि अब एल्जेक और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और ये तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेक्चर है और कल नए टीचर यहाँ पे आएंगे और वो आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। सो आज मेरा आपके साथ लास्ट लेक्चर है या आपका अपने लैंग्वेज मदर टंग सीखने का लास्ट चांस है, तो प्लीज़ सारे अटेंटिव होके सुनना। What a thunder clap this words were to me। जो नरेटर है वो बोलते हैं कि इट वॉज़ लाइक अ थंडर क्लैप मतलब शॉकिंग साउंड। जो वर्ड्स बोले थे एम हैमल ने वो उनको शॉक दे गए, ही गॉट शॉक ड्यू टू दोज वर्ड्स। ओ wretches मीन्स अनफॉर्चुनेट पर्सन, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो उसको पता चला अच्छा वो कि उन लोगों ने, ये अनफेथफुल लोगों ने, ये स्काउंड्रल्स ने ये चीज़ रखी थी टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे जो सब लोग पढ़ रहे थे। और इसीलिए वो जो ब्लैक स्मिथ था उसने उसको बोला था, वॉचर ने बोला था कि आराम से जाओ, तुम्हें स्कूल जाने में देरी नहीं होने वाली। अब उसको समझ में आया। My last French lesson, why I hardly knew how to write। और जब ये जो लिटिल फ्रेंड्स है वो सोचता है ये तो मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है और मैंने तो अभी तक स्कूल में फ्रेंच अभी मैंने सीखा ही नहीं कि कैसे फ्रेंच लिखना है। क्यों? क्योंकि कभी मैंने एजुकेशन को सीरियस लिया ही नहीं। अच्छा, ये कैसी बात हो गई कि हम लोग जो चीज़ हमारे पास होती हैं उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं, या फिर पढ़ाई के बारे में हम कैजुअल हो जाते हैं कि वो क्या आज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, कल पढ़ेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। So he taught my last French lesson, why I hardly knew how to write। I should never learn any more। आज मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद मुझे कभी भी फ्रेंच पढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। I must stop there then। Oh, how sorry I was for not learning my lesson। उसको हुआ ये जैसे कि ये टाइम है यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि मैंने अभी तक फ्रेंच पढ़ा ही नहीं है, लिखना सीखा ही नहीं है और मैं फिर से वो पढ़ ही नहीं पाऊँगा। And
how sorry was for not learning my lessons, for seeing birds' eggs or going sliding on the Sar. सार जो है वहाँ की रिवर जो फ्लो होती थी वहाँ से, वो उसका नाम है। और वो बोलता है कि मैंने कैसे अपने स्कूल आवर्स मिस कर दिए, लेसन्स पढ़ने को मिस कर दिए, और मैंने जाके बर्ड्स के एग्स को वॉच किया, सार रिवर्स में मैंने स्लाइडिंग किया, या सार रिवर में जाके मैंने डाइविंग और स्विमिंग किया। My books that seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. यही मेरी बुक्स जो अब तक मुझे न्यूसेंस लगती थी, बहुत ही हैवी लगती थी कैरी करने में, कि इतनी हैवी बुक कौन कैरी करे। मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, अब लगता है कि ये मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं जो बहुत जल्दी मुझसे छूटने वाले हैं, और मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता था। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और दूसरी तरफ मेरी टीचर मिस्टर हैमल, ऑफ कोर्स एक जो आइडिया था कि जो सोच थी कि एम हैमल अब चले जाएंगे, मैं कभी उनको नहीं देखूंगा, मुझे भुला दिया कि एम हैमल की रूलर के बारे में, उनकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में, उनके क्रैंकी होने के बारे में, क्रैंकी मतलब बैड टेम्पर्ड होने के बारे में और एसेंट्रिक होने के बारे में, वो सारी चीज़ें भूल गई। अब मुझे जो टीचर थे मेरे एम हैमल, वो अच्छे लगने लगे थे और उनकी मुझे दया भी आ रही थी। वो बोलते हैं, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। फिर उसको पता चला लिटिल फ्रेंड्स को कि हाँ लास्ट लेसन था, उसकी ऑनर में मिस एम हैमल ने ये स्पेशल क्लोथ पहने हैं। And now I understand why the old man of village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो फिर उसको पता चला लिटिल फ्रेंड्स को कि अच्छा तब ये जो विलेज के ओल्ड मैन है पीछे की बेंच पे बैठे हैं, क्योंकि उनको सॉरी फील हो रहा है दो चीज़ के लिए, कि उन्होंने ठीक से पहले स्कूल में पढ़ाई नहीं की, और दूसरी कि उनके जो टीचर हैं एम हैमल ने अपने लाइफ के 40 इयर्स दिए कंट्री की सर्विस में, कंट्री को एजुकेशन देने में, एंड इवन उनको सॉरी फील हुआ फ्रांस के लिए, अपने रीजन एल्जेक और नॉरेन के लिए, कि जो अब उनका नहीं रहा। सो दे फेल्ट सॉरी फॉर ऑल दिस थिंग्स। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, सैड फील कर रहा था, तो एकदम से मुझे अपना नाम सुनाई दिया। एम हैमल ने मेरा नाम लिया था, फ्रेंड्स। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट, और मेरा उस वक्त टर्न था वो पार्टिसिपल का, जो लेसन सर ने प्रिपेयर करने को बोला था वो बोलने का, उसके रूल्स बोलने को। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. वो बोलते हैं कि मुझे ये रूल जो है वो कैसे मैं बताऊंगा, what would I not have given to be able to say, कि मैं जो रूल है पार्टिसिपल का वो मुझे वेरी लाउड एंड क्लियर बोलना था विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, बट मैं ये कैसे बोल सकता था। सो वो बोलते हैं, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, और लेकिन मुझे बहुत ही वहाँ पे मैं जब बोलना मैंने शुरू किया रूल्स पार्टिसिपल के, वहाँ पे मैं फर्स्ट वर्ड में ही मैंने गड़बड़ कर दी और मैं चुपचाप वहाँ खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और मुझे तो कितना शेम फील हो रहा था कि मैं इतना भी लर्न नहीं कर पाया, मेरा हार्ट था वो फास्ट बीट कर रहा था डर की वजह से, एंड मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी शर्म की वजह से, एम्बेरसमेंट की वजह से, कि मैं ऊपर देख पाऊँ। I heard M. Hamel say to me,
ऑफ कोर्स एम हेमल से तो उसको एक्सपेक्टेशन था एज यूजुअल कि सर डांटेंगे मुझे, लेकिन एम हेमल ने कहा आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बाह का यहाँ पर मीनिंग होता है इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो वो हैमल बोलता है देखो लिटिल फ्रेंड्स कैसा होता है, तुम्हें बैड फील हो रहा है मुझे पता है, और तुम्हें बैड फील करना भी चाहिए क्योंकि रोज़ क्या होता है, कैसे कैसे पूरा होता है कि रोज़ हम अपने आप को कहते रहते हैं कल पढ़ेंगे, अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टमोरो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और तुम देख सकते हो आज क्या हालत है, आज तो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते इसके आगे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जैक। वो बोलते कि एल्जैक के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग इतने लेज़ी हैं या यहाँ के लोग टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझते, छोटा टाउन है इसलिए वो सोचते हैं कि हम कल चीज़ करेंगे, कल पढ़ाई करेंगे, और फिर कल आता ही नहीं है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और इसी वजह से शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो मतलब हमेशा लोग वहाँ के इतने आलसी हैं, एजुकेशन के लिए इतने कंसर्न नहीं है, उनके लिए एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, खुद की लैंग्वेज लर्न करना भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे उसको अच्छे से बोला जाता है, कैसे उसको अच्छे से लिखा जाता है, और इसलिए वहाँ के लोग बहुत कम लोग लिटरेट हैं, और इसी वजह से सारे प्रॉब्लम होते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर हैव द राइट टू से यू हाउ इज़ इट। और तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, इसीलिए ये जो लोग हैं, लोग किस लोग की बात कर रहे हैं, प्रूशियन रूलर्स की बात कर रहे हैं कि उनको तो अपने लोगों ने पढ़ाई ना करके वो राइट दिया, उनको अपने पे रूल करने दिया कि वो फ्रेंच वो हमें ऐसा पूछ सकते हैं कि तुम लोग बोलते हो, तुम लोग कहते हो तुम लोग फ्रेंच मैन हो, लेकिन तुम्हें ना ही अपनी लैंग्वेज अच्छे से बोलनी आती है ना ही लिखनी आती है, मतलब वो लोग हमें सवाल कर सकते हैं। How it is you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst। और फिर फ्रेंड्स को बोलते हैं कि फ्रेंड्स तुम्हारे अकेले की ऐसी हालत नहीं है, मोस्ट ऑफ लोगों की यहाँ पे एल्सैक में ऐसी ही हालत है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्व्स विद। हमारे पास रिप्रोच करने के लिए, रिप्रोच मतलब डिसअपॉइंट होने के लिए हम सबके पास बहुत सारे रीजंस हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स ने ही कभी वो कोशिश नहीं की है कि तुम्हें एजुकेशन मिले, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि भाई एजुकेशन लेके क्या करेगा फ्रेंड्स, उससे अच्छा है वो हमारे फार्म में पे आए, वो फील्ड में वर्क करे या मिल्स में वर्क करे, सो दैट तुम कुछ मनी जोड़ सको फैमिली के लिए। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at mills so as to have a little more money. And I फिर वो अपने आप के बारे में, और चलो तुम्हारे पेरेंट्स ने तो एफर्ट्स नहीं किए फ्रेंड्स, लेकिन मेरे बारे में भी मुझे भी ब्लेम कर सकते हो, क्यों? हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, and when I want to go fishing did I not just give you a holiday। वो बोलता है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, तुम आज पढ़ नहीं पाए उसके लिए। कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि तुम्हें अपने लेसन्स लर्न करवाने की बजाय मैं बोलता था जाओ मेरे गार्डन में जाके वो पौधों को पानी दो, या कभी कभी मुझे खुद एंजॉय करना होता है, फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम लोगों को हॉलीडे दे देता था। Then from one thing to another M. Hamel went to talk of the French language, saying that it was the most beautiful। मतलब ये सब बातें करके, इधर की उधर की सब बातें करके एम हैमल फिर फ्रेंच लैंग्वेज पे आते हैं और सबको बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। Yeah, here is a map which we have seen, that is on the page 6. Yeah,
वो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज है इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियर इज़ द मोस्ट लॉजिकल। फ्रेंच वो बहुत क्लियर लैंग्वेज है, ज़रा भी एम्बिग्यूअस नहीं है, ज़रा भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, रीजनिंग वाली लैंग्वेज है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। वो बोलते हैं कि अब कितने साल जर्मनी हम पे रूल करेगी पता नहीं है, प्रूशिया हम पे रूल करेगी पता नहीं है, लेकिन यदि हमने अपनी लैंग्वेज सीखी हो, अपनी मदर टंग सीखी हो, तो एटलीस्ट हम अपने कम्युनिकेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम घर पे अपने बच्चों को ये लैंग्वेज सिखा सकते हैं। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। वो बोलते हैं कि यहाँ तक वो लोगों का सवाल है जो एनस्लेव हुए हैं, जिन पे और कंट्री रूल करती हैं, यदि वो अपनी लैंग्वेज को बचा के रखते हैं तो वही लैंग्वेज उनको अपने प्रिजन मतलब गुलामी से आज़ादी दिलाने में हेल्प करते। दैट इज़ देयर की टू गेट फ्रीडम फ्रॉम प्रिजन। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की और फिर हमें ग्रामर का लेसन समझाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सेड seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully। और फ्रेंड्स बोलता है कि जब टीचर ने ग्रामर का चैप्टर समझाया पढ़ाया तब मुझे लगा कि माय गॉड, ग्रामर का ये जो चैप्टर है ग्रामर का वो कितना इजी है। मैं ही हूँ जिसने कभी ध्यान से चैप्टर को समझा ही नहीं, अदरवाइज़ वो बहुत बहुत ईजी है। I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। और मुझे ऐसा भी लगा कि आज टीचर को शांति है, ही इज़ नॉट इन हरी ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स, क्योंकि उनको पता है कि उनका ये लास्ट लेक्चर है। तो उनको लगा कि ना, फ्रेंड्स को लगा कि ना ही मैंने कभी ठीक से ध्यान दे के पढ़ाई करने की कोशिश की है, ना ही एम हैमिल ने कभी इतने शांति से इतने पेशेंस के साथ हमें चैप्टर समझाया है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going and to put it all into our head at one stroke। और बेचारे मिस्टर हैमिल की हालत ऐसी थी कि वो आज ही सबको सब कुछ पढ़ा देना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास सेकेंड चांस नहीं है। तो ऐसा लगता था कि वो आज ही हम सबको सब कुछ समझाना, एक्सप्लेन करना, पढ़ाना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर का ख़त्म हो गया तो हर एक को अपनी एज के मुताबिक अलग अलग राइटिंग लेसन्स दिए गए। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस स्कूल से ही स्टडी मटेरियल दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि हमें एम हैमिल ने इस बार न्यू कॉपीज़ दी, न्यू बुक्स दी। रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड मतलब अच्छे से कर्सिव हैंड राइटिंग में अच्छे से लेटर्स फॉर्म किए हुए थे, कैलीग्राफिक किए हुए थे। उसमें लिखा था फ्रांस एल्ज़ेक। सारी बुक्स पे लिखा हुआ था फ्रांस एल्ज़ेक। दे लुक लाइक द लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और हर एक बुक पे ये लिखा हुआ था, तो आप जहाँ भी नज़र जाती थी वहाँ पे ऐसा लगता था कि जैसे फ्रांस एल्ज़ेक लिखे हुए फ्लैग्स लगाए हुए हैं हर एक डेस्क पे, स्कूल रूम की हर एक डेस्क पे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। वो बोलता है फ्रैंक के नॉर्मली जब भी टीचर कोई राइटिंग वर्क देते हैं तो कुछ बच्चे सिंसियरली पढ़ते हैं, कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, कुछ बच्चे बैठे रहते हैं। लेकिन इस बार एम हैमिल ने जब वर्क दिया तो सारे ही लोग, सारे ही बच्चे, सारे एज के बच्चे चुपचाप अपना सिंसियरली अपना वर्क कर रहे थे। The only sound was the scratching of the pen over the paper. It was pin drop silence in the room। खाली जो बच्चे पेन से लिख रहे थे उसके निप की ही आवाज़ आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on the tracing their fish hooks, as if that was French too।
और वो बोलते हैं कि उस वक्त रूम में बिटर्स मतलब तो बीज जैसे दिखती है, बीज होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं वो रूम में। अब नॉर्मली जब बीज रूम में आती हैं तो वहाँ पे हस्टल बस्टल हो जाता है, सारे बच्चे उसको देखने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मतलब ये पूरा पूरा क्लास कोमोशन में आ जाता है, पूरा क्लास नॉइज़ और कन्फ्यूजन में आता है। लेकिन इस बार जब बिटल्स रूम में आई तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इवन जो स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन थे जो सिर्फ ड्राइंग करते थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ट्रेसिंग देयर फिशुक्स मतलब वो लोग ड्राइंग कर रहे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया जैसे कि वो खुद फ्रेंच पढ़ रहे हो। On the roof the pigeons cooed very low। उसने सोचा कि नॉर्मली पिजन्स होते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कूइंग करते हैं, लेकिन अभी पिजन कू कर रहे उनका आवाज़ भी बहुत लो है, एज ए वो भी शायद सैड हैं। आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। उन्होंने सोचा कि ये जर्मन्स इतने क्रूअल होंगे कि वो उन्होंने हमारी लैंग्वेज तो हमसे छीन ली, दैट इज़ फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन क्या ये पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में क्यूइंग करने का ऑर्डर्स दे सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ थॉट टू फील दैट यू आर इन द प्रिजन, यू आर इन द केज। Whenever I look up for my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at the another thing. जब मैं लिख रहा था, लिखते लिखते मैं जब भी एम हैमेल की तरफ देखा तो वो विदाउट एनी मूवमेंट, नॉर्मली तो एम हैमेल बहुत ही एक्टिव रहते थे क्लास में, लेकिन इस बार वो एकदम मोशनलेस होकर अपनी चेयर में बैठे थे, कभी एक चीज़ को कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे। शायद इसीलिए देख रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ के 40 ईयर्स स्पेंड किए थे और वही स्कूल को छोड़कर अब उन्हें जाना है। या in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Imagine, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window, in his class in front of him. Just like that. Only desk and benches had been worn smooth. वो बोलते कि वो जस्ट सोचते 40 साल से बस वो वही घर में रह रहे हैं, वही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही उनका लिटिल गार्डन है जहाँ पे अलग अलग वाइन्स ग्रो हुई है, वॉलनट ग्रो हुए हैं, वही डेस्क और बेंचेस हैं जो वॉन स्मूथ मतलब कि पुरानी हो गई है, जो पहले थी 40 साल उससे पुरानी हो गई है, अदरवाइज सब कुछ वहीं का वहीं सेम है। Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. Walnut trees जो उन्होंने उगाए थे अब बहुत बड़े हो चुके हैं। दो होपवाइन मतलब क्रीपर आता है। होपवाइन had been he had planted himself twined about the windows on the roof. और होपवाइन जो उन्होंने उगाई थी वो भी, मैंने जैसे कहा वो क्रीपर है तो वो जो रूफ़ है उसकी विंडोज़ पे क्रीप करके उसको सराउंड कर चुकी है, मतलब वो भी अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन। और कितना वो पुअर मैन मतलब एम हैमेल को ख़राब फील हो रहा होगा, कैसे उनको सैड फील हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा कि सारी चीज़ें उनको छोड़ के जानी हैं। To hear his sister moving about the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और वहाँ से ऊपर से आवाज़ें आ रही थी कि कैसे एम हैमेल की जो सिस्टर है वो रूम में मूव हो रही है और उनका ट्रंक्स मीन्स बैग्स, जो बड़ी सी आयरन की मेटल की बैग्स होते हैं ना उसको ट्रंक्स बोलते हैं, तो कैसे वो अपना सामान सब ऊपर पैक कर रही हैं क्योंकि नेक्स्ट ही डे उनको कंट्री छोड़ के एल्ज़ैक छोड़ के जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन फिर भी वो अपसेट नहीं हो रहे थे, उन्होंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि आज मैं जितना भी अपने कंट्री मैन को एल्ज़ैक को दे सकता हूँ उतना दे के जाऊँगा, वो सोचा एम हैमेल। After the writing, we had a lesson in history. Writing पार्ट ख़त्म हो गया, फिर एम हैमेल ने हमें अपनी कंट्री की हिस्ट्री समझाई और फिर बेबीज चेंटेड बा बेबी बोबू, मतलब हम जैसे वो होता है ना कि ग्रामर में लेसन्स अ आ ई ऊ ऊ सीखते हैं,
उसी तरह से छोटे बच्चों ने अपना चैंटिंग किया। चैंटिंग मतलब सिंगिंग टुगेदर, उसके जो ग्रामर लेसन्स हैं। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और जो ओल्ड हाउसर था वो कभी भी स्कूल नहीं गया आया था, कभी भी उसने पढ़ाई नहीं की थी। वो भी बहुत छोटे बच्चों के साथ एकदम सिंसियर होकर अपनी ग्रामर बुक ओपन करके उसमें से ग्रामर लेसन पढ़ रहे थे, बेसिक ग्रामर पढ़ रहे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. और फर्दर यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मिस ओल्ड हाउज़र को सुनना, तो ओल्ड हाउज़र थे, काफ़ी ओल्ड थे, और वो एक तरफ रो रहे थे अंदर से, उनकी आवाज़ थी वो ट्रेम्बल शेक हो रही थी, और उसमें वो अपने लेसन्स रिपीट कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो ये सुन के फ्रेंड्स को लगा कि हम लोगों को एक तरफ हंसी भी आ रही थी और एक तरफ उनको देखकर रोना भी आ रहा था। वो कहता है मैं अपना जो लास्ट लेसन था वो कभी भूल नहीं पाऊँगा। फिर ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। उतने में चर्च का जो क्लॉक होता है वहाँ पे 12 बजे जिसकी आवाज़ आई। देन द एंजेलस, एंजेलस मतलब जो प्रेयर होती है चर्च में, उसकी आवाज़ आई। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill। और उसी वक्त जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो जो ड्रिलिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग मतलब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके भी ख़त्म होने की आवाज़ आई, ट्रम्पेट बजा। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, ये साउंड आया हमारे विंडोज़ में, और वही टाइम था स्कूल के ख़त्म होने का। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल, वेरी डल in his chair. I never saw him look so tall। मैंने कभी भी उनको इस तरह से खड़े हुए स्ट्रेट खड़े हुए नहीं देखा था। My friends, he said, I but he was not able to speak anything more because अंदर से वो रो रहे थे, जिसकी वजह से उनका वॉइस, उनका थ्रोट चॉक हो गया। He could not go on। Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could। वो कुछ बोल तो नहीं पाए थे, लेकिन वो गए ब्लैक बोर्ड में, चौक उठाया और हिम्मत करके, जितनी भी उनमें हिम्मत बची थी वो हिम्मत करके उन्होंने बोर्ड पे लिखा, वी विल हैव फ्रांस। वी विल हैव फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप एंड लीड, खड़े हुए और वो ब्लैक बोर्ड पे झुक गए। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। उन्होंने अपने हैंड्स से हमें जेस्चर करके, अपने हैंड्स को मूव करके उन्होंने हमें कहने की कोशिश की, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल ख़त्म हो गई, आप सब जाओ। सो दिस इज़ वेरी इमोशनल स्टोरी narrated by a little boy, how he took the last lesson of France in the district of Alsace. So students, I hope you have understood the chapter thoroughly, and my students have to write, I will send them question answers, please write it down in your book and learn it for the test. Rest, if you have any query, please don't forget to write in the comment box, and if you have still not subscribed my channel, please click on the subscription and don't forget to click on the like button. Thank you. Keep yourself safe and have a nice day.